Hello everyone, myself Dr. H. Khan, Professor of Mathematics, जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल वसंत कुंज। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर खान मैथ स्टडीज में। जैसा कि आप जानते हो कि ये जो वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इट विल बी मैजिकल वीडियो फॉर यू, द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास टेस्ट एग्जामिनेशंस। First of all, I welcome you all in this video. Right. So before discussing about the important topic and questions for the class test exam 2000 October 2025, I want to discuss with you the mainly the formation of question paper. Okay. The question in the question paper, the formation of question paper, question number one will be compulsory, or question number one will have six part. Among six part, you have to attempt only five parts, and the marks for the each part will be two. So question number one, total weightage of the marks will be 2 multiplied by 5, that is 10. Okay, and then you have the question number 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, in question number, from the question number 2, 3, 4, 5, 6, you have to attempt only 4 questions. And the weightage of the questions या marks awarded for each question will be 5. So that's why the total marks for the paper will be 30. 2 multiply by 5 part, that is 10, and 5 marks for long answer type questions. 5 multiply by 4, that is 20. So total you have to attempt 4 long answer type questions and 5 short answer type questions. So total questions you have to attempt 9 in 2 hours. Okay, so this is the formation of question paper. I hope you understood. Now, coming on the important topic and important questions for the class test exam. First of all, Unit 1. In Unit 1, very important topic. Every student have to learn about the principle of mathematical induction as I discussed in the classroom. जैसा ही क्लासरूम में मैंने कहा था कि पीएमआई एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना क्वेश्चन पेपर कभी नहीं बनता है। और ये मेरा क्या नाम है, गैस है, ये मेरा प्रिडिक्शन है कि पीएमआई का क्वेश्चन हमेशा, चाहे वो क्लास टेस्ट का एग्जाम हो या फिर आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, हमेशा आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो क्लास टेस्ट में बेसिकली फोकस किया जाता है बच्चे की एलिमेंट्री लर्निंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पर। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इस टाइप के क्वेश्चन पर फोकस करें जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये है, प्रूव बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन 1 + 2 + 3 + 4 + so on equal to n plus 1। And question number two, prove by the mathematical induction 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus so on up to n square equal to n plus 1 to n plus 1 by 6. Question number three is prove by the mathematical induction 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube plus so on up to n cube is equal to n plus 1 by 2 का whole square. So these questions are based on the equality concept. Okay, everybody knows what is the equality concept of the principle of mathematical induction. So you have to more focused on the equality questions in your books. ओके, डोंट कंसीडर कि जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो डिक्टो आपको एग्जाम में मिलेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये भी मैंने आपको बोला है, द क्वेश्चंस डन बाय मी इन द क्लासरूम विल नॉट बिकम डिक्टो इन द एग्जामिनेशंस, बट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस माइट बी लाइक दैट। आई प्रिडिक्ट दिस। तो ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है कि ऐसे क्वेश्चंस तो एग्जाम में हमेशा मतलब जगह दी जाती है। तो आप फोकस करें इस टाइप के क्वेश्चन पर। जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर। तो आप कोशिश कीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, जिससे कि आप हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलने के चांसेस हो। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर दो ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर वन, क्वेश्चंस ऑन इक्वालिटी। नंबर टू, क्वेश्चंस ऑन द स्टेटमेंट्स। तो in both type of questions I am say मतलब I want to tell you that you have to more focused on the such type of questions as I discussed in question number 1, 2 and 3. So arithmetic progression मतलब principle of mathematical induction
will be very very important point of important topic for the point of view of examinations. So I hope you will understood, and you have to work on such type of questions. You have to focus on such type of questions. So principle of mathematical induction. Now the second topic of your unit 1 is arithmetic progression. Okay, I presume in arithmetic progression, everybody is capable to do the questions on nth term formula and sum up to nth term formula. Okay, on arithmetic progression, I will recommend the questions like that. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टूड कि मैं बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस, इस टाइप के जो क्वेश्चंस जो मैंने क्लास में आपको कराया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर फोकस मैंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है। आई मेंशनड क्लियरली हियर फोकस ऑन द बेसिक क्वेश्चंस ऑन सम फॉर ऑन सम फॉर्मूला। SOME लिख गया है, SUM है बेसिकली सम। क्या आएगा यहाँ पर? SUM सम फॉर्मूला। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, SOME नहीं है, SUM है सम फॉर्मूला। तो सम फॉर्मूला पर भी किस टाइप के क्वेश्चंस को बेसिकली आपको करना है, जैसे कि क्वेश्चन एग्जांपल मैंने आपको दिया है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP 5 + 10 + 15 + 100। ये मतलब एक तरीके से पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको, इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इस टाइप के पैटर्न पर क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, और अच्छे से प्रिपेयर करना है। राइट, और ये कोई भी बच्चा ये माइंड में लेके ना चले कि ये डिक्टो क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। आई एम डिस्कसिंग द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, तो इस टाइप के पैटर्न पर आपको फोकस करना है जब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप कर रहे हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप के लिए मेरा ये मानना है कि आपको याद है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए थे, Pth टर्म इज क्यू, Qth टर्म ऑफ P, फाइंड PQ टर्म या फाइंड P+Q टर्म्स, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें यूज होता है सम फॉर्मूला और nth टर्म फॉर्मूला। और डोंट फॉरगेट टू प्रिपेयर द application of arithmetic progression where numbers are given. I hope do you remember in the classroom I discussed some questions like that। मैं यहाँ पर भी डिस्कस कर रहा हूँ कि if the sum of three numbers of an AP is 12 and their product is 194 then find the numbers। अब वहां पर आपसे थ्री नंबर्स ना पूछ के तो 4 नंबर पूछ सकता है, 5 नंबर पूछ सकता है। आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस को मैंने क्लास में डिस्कस किया है, और आपको बताया भी था कि 3 नंबर्स को AP में कैसे एज्यूम किया जाता है, 4 नंबर्स को AP में कैसे एज्यूम किया जाता है, और 5 नंबर्स को AP में कैसे एज्यूम किया है। तो AP पर जो मतलब यू शुड हैव क्लैरिटी अबाउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बेसिक क्वेश्चंस ऑन द AP, बेसिक क्वेश्चंस ऑन द nth term of the AP, and basic questions on the sum formula of the AP। Okay, and finally the number, how we find numbers in AP, like the example, मतलब I have written the example here, if the sum of three numbers of an AP is 12। इस टाइप के क्वेश्चंस पर फोकस ज्यादा आपको करना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे तो मोस्ट तो मतलब हो सकता है कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज आल्सो क्वाइट इजी। हमेशा याद रखना, AP के कंपैरिजन में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हमेशा कम वेटेज दिया जाता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर आपका फोकस कम होना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर सिंपल बेसिक क्वेश्चंस ऑन nth टर्म। ओके, मैं यहाँ पर आपको बोलूंगा, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी मैंने आपको नीचे दे रखा है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ GP इज 12 एंड सेवेंथ टर्म इज 216 फाइंड टेंथ टर्म। ऐसा क्वेश्चन क्या है कि इसमें ना कुछ टाइम आपको लगता है सोचने में और करने में। तो इस टाइप के सैंपल क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूं, तो इस टाइप के सैंपल क्वेश्चन GP पर प्रैक्टिस करना है। और जो मैंने 2-3 क्वेश्चन ऊपर AP पर लिखा है ना, इस टाइप के सैंपल क्वेश्चंस आपको AP पर फोकस करना है, इन क्वेश्चंस पर। राइट, तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट यूनिट, कि फर्स्ट यूनिट में इन चीजों पर आपको फोकस करना है। इफ यू विल फोकस, यू विल बी मोर फोकस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देन आई होप दैट यू विल हैव सब गुड मार्क्स इन योर पेपर। ओके, नाउ अब मैं बात करता हूँ यूनिट सेकंड के बारे में। यूनिट सेकंड के बारे में पूरा यूनिट आपको पता है, पूरा यूनिट सेकंड में मैट्रिक्स आपको आता है। क्लियरली मैंने हमेशा आपको एक चीज मेंशन की है कि कॉलेज लेवल का जो टॉपिक है ना,
रैंक ऑफ द मैट्रिक्स उसको हमेशा पेपर में देने की कोशिश की जाती है। क्यों कोशिश करते हैं हम उसको? क्योंकि कॉलेज लेवल पर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स केवल कॉलेज लेवल पर पढ़ाया जाता है, बाकी सारी चीजें स्कूल में आप पढ़ चुके होते हो। तो सबसे पहले आप रैंक पढ़ेंगे। Okay, first of all, you have to prepare solution of the question to find the rank of a matrix, or also the definition of rank you have to know. मैंने क्लियरली लिखा है, डिफाइन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ऑल्सो फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। अब ये मैट्रिक्स यहां पर कोई भी हो सकता है। ये मैट्रिक्स यहाँ पर रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। आप समझ रहे होंगे, आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पर कोई भी टाइप का मैट्रिक्स आपको, ये एग्जांपल है, मतलब एक सैंपल क्वेश्चन है। कभी आप सोचे कि वो बेटा क्या बात है, यही मिलेगा क्या हमें? ये सब नहीं बता रहा हूँ मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस टाइप का जो सैंपल क्वेश्चन है ना, आपको 100% पेपर में मिलने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप का मैट्रिक्स यहाँ पर आपको दिया जा सकता है, बट यू हैव टू फॉलो द मेथड कि व्हाट इज द मेथड टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो रैंक, एवरीबडी हैव टू प्रिपेयर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चन स्क्वायर मैट्रिक्स पे कर लीजिए रैंक के, एक दो क्वेश्चन रेक्टेंगुलर पे कर लीजिए रैंक के। ठीक है, तो रैंक के क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है आपको रैंक पर। यू शुड बी मोर फोकस्ड और रैंक। और देखिए और क्या क्या आपको लगता है कि मैट्रिक्स में आ सकता है। मैट्रिक्स में दो तीन चीजें होती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। नंबर वन, आपका इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स होता है। ओके, नंबर टू, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है। नंबर थ्री, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आपका होता है। क्योंकि ये आपका अप्लाइड मैथ बेसिकली होता है। बीबीए वाले बच्चों को ना प्योर मैथ नहीं सिखाया जाता है, उनको इसका एप्लीकेशन हम सिखाते हैं। तो एप्लीकेशन के लिए आपको ये टूल्स आपको पता होना चाहिए। तो मैट्रिक्स के ऊपर जो आपका मोर फोकस्ड होगा, वो होगा कैसे? नंबर वन, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पर। नंबर टू, हाउ वी फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर थ्री, हाउ वी सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी बच्चा माइंड में ये लेके नहीं चलेगा कि जो मैं यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं ना, एकदम एग्जैक्ट डिक्टो क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप पैटर्न हमेशा, ये बेसिकली इस तरीके का पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो इस तरीके पैटर्न के क्वेश्चंस को आप फॉलो करें, मतलब इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस पर आप हार्ड वर्क करें। ठीक है। दूसरा आपका, मैंने यहां पर नीचे भी लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय द इनवर्स, मतलब मैट्रिक्स के इनवर्स से आपका मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ऑल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, और यहां पर भी मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है। याद रहे आपको, रिमेंबर ऑलवेज, अगर आपसे पूछा गया है कि मैट्रिक्स का इनवर्स इनवर्स फाइंड कीजिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेना भाई। तो डिटर्मिनेंट निकाल के, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तभी इनवर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करना। कभी कभी होता है कि डिटर्मिनेंट नहीं निकाला होता, उसका इनवर्स जीरो आ गया और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स पर यू शुड बी मोर फोकस्ड। ओके, उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब यहां पर कोई भी इक्वेशन हो सकती है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, मैंने एक सैंपल इक्वेशन आपको दिया है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 15, या एक्स प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 20। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब देखना यहाँ पर, यू हैव थ्री मेथड्स टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन योर सिलेबस, right? So how many methods you have? Three methods. Or also I discuss in the classroom. Number one, matrix method. Number two, Kramer rule. Number three, Gauss elimination method. Everybody have to learn all three methods to solve the system of equation. और रिमेंबर, सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्लास टेस्ट में भी क्वेश्चन हमेशा रखने की कोशिश की जाती है, और भाई यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी हमेशा क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं मैट्रिक्स के अंदर जहां पर कि जिन जिन टॉपिक्स को कभी भी लीव नहीं किया जाता, लेफ्ट नहीं किया जाता, छोड़ा नहीं जाता है। ओके, और यहाँ पर भी पता है एक चीज मैं आपको, मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगा कि किस पर मोर फोकस्ड आपको करना है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स मेथड आप में से मोस्टली लोगों ने स्कूल में पढ़ा होता है, राइट। क्रेमर रूल को मोस्टली लोगों ने स्कूल में पढ़ा होता है। कॉलेज लेवल का जो बेसिकली आपका टॉपिक आता है ना, वो आता है गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड पर एक एक क्वेश्चन कीजिए, दो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से, दो क्वेश्चन मैट्रिक्स मेथड पे कर लीजिए, एनी टू क्वेश्चन, दो क्वेश्चन क्रेमर रूल पे कर लीजिए, और आप दो या तीन क्वेश्चन गॉस एलिमिनेशन पे कर लीजिए। लेकिन याद रहे,
क्वेश्चन पेपर के अंदर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को नहीं छोड़ा जाता है। यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ओके। और यहां पर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन गॉस एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर, जो कि कॉलेज लेवल का टॉपिक है, तो इस मेथड के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं पेपर में, मतलब क्वेश्चंस के आने के इस मेथड के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो फोकस किस पर पढ़ना, तीनों टॉपिक्स है। मैट्रिक्स मेथड पर भी एक क्वेश्चन जरूर करना है, आपको सीखना है। क्रेमर रूल पर भी आपको सीख के आना है, लेकिन आपका जो फोकस है ना, वो मोर फोकस किस पर होगा, गॉस एलिमिनेशन मेथड पर। क्यों इस पर पता है कि इस पर फोकस क्यों होता है, मेरा प्रेडिक्शन क्यों है? क्योंकि गॉस एलिमिनेशन मेथड को करने के लिए यू रिक्वायर टू लर्न एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब आप लर्न कर ले तो उसके बाद ही इसको कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को पूछने का पीछे लॉजिक ये बन सकता है कि भाई बच्चों को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आता है नहीं आता है। अगर वो आता है तो इसको कर लेगा, इसका मतलब कॉलेज लेवल का जो टॉपिक है उसको वो आने लगा है। तो इस टाइप के जो टॉपिक्स है, जिसको मैंने बोला है यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन सच टॉपिक्स, तो एवरीबडी हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस। ओके, नाउ मैं बात करता हूं आगे बढ़ते हुए परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की। देन आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ना एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इजी टॉपिक है आपके सिलेबस का। मेरा ये मानना है कि इस पर बेसिक क्वेश्चन आप करेंगे ना तो भी आप आराम से अच्छे से आप क्वेश्चन करके आ सकते हैं। हमेशा आपको भी याद होगा क्लास में जब मैंने सर्कुलर परमुटेशन को पढ़ाया था, तो आई सेड कि लीव दिस टॉपिक, आई डोंट प्रिपेयर दिस फॉर द एग्जामिनेशंस। द सर्कुलर परमुटेशंस डोंट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस। अगेन आई एम सेइंग हियर, don't prepare the circular permutations for the examination as well as for here or university also। बट ऑन परमुटेशंस या प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर एक ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। मान लीजिए 5 पिक्चर नेल है, हाउ यू कैन हैंग, ओके, 3 पिक्चर्स ऑन 5 पिक्चर नेल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5p3। अब आपके पास मान लीजिए 4 जोड़ी जूते हैं और 3 जोड़ी सॉक्स हैं, उनको वियर करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, सिंपल क्वेश्चन है परमुटेशन पर। तो वहां पर ना जो क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा ना, वहां पर क्वेश्चन जो टेक्निकल थिंकिंग पर होगा, बट इट विल बी बेसिक क्वेश्चन ऑफ द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ज्यादा डीप जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बेसिक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। किस पर, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पर। आपको वहां पर सर्कुलर परमुटेशन को एकदम अवॉइड करना है, इग्नोर मार देना, उसको आप नहीं जानते। राइट। अब मान लीजिए कोई कमेटी बनानी है, कॉम्बिनेशन के अंदर कोई क्वेश्चन अगर आता है, कोई कमेटी बनानी है। मान लीजिए 4 लेडीज है, 10 जेंट्स हैं, उसमें से कमेटी कोई बना रहा है, कह रहा है कि इसमें से एक कमेटी बनाइए 10, मतलब 5 6 लोगों की, जिसमें 2 लेडीज हो, 3 जेंट्स हो। ऐसे क्वेश्चंस मैंने क्लास में किए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आने के ऐसे क्वेश्चंस के चांसेस होते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ थ्योरी क्वेश्चंस, बेसिकली किस तरीके से आपको लर्न करना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये थ्योरीज आप प्रिपेयर करके आएंगे तो हो सकता है कि थ्योरी क्वेश्चंस आपको इस तरीके का मिल जाए। नंबर 1, स्टेप ऑफ द पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, एवरीबडी हैव टू नो। ओके, नंबर 2, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, क्लास में मैंने क्लियरली समझाया। मैट्रिक्स के जितने भी टाइप मैंने आपको लिखवाए हैं ना, यू शुड लर्न एवरी टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, बट फोकस ऑन सच डेफिनेशंस। इन डेफिनेशंस पर आपको फोकस करना है, कि डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, और स्केलर मैट्रिक्स हो गया, फॉर्मूला फॉर एपी एंड जीपी। ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जिन पर कि आपको फोकस करना है। मतलब लर्न द फॉलोइंग डेफिनेशंस, स्टेप ऑफ पीएमआई, पीएमआई के स्टेप्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है ना, डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स आपको लिखवाया है ना क्लास में मैंने। अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बिना आप गॉस एलिमिनेशन तो कर ही नहीं सकते। तो गैस गॉस एलिमिनेशन मेथड को मैंने कहा है कि आपको मोर फोकस करना है, तो वहां पर आपका फोकस तो आपको पता होना चाहिए, व्हाट डू मीन बाय द अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, और फॉर्मूला एपी और जीपी के फॉर्मूले क्या होते हैं, एनाट्रम और सम टर्म के। तो इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को यू हैव टू प्रिपेयर। और वैसे जिस बच्चे ने क्लास नोट किया है ना, अगर वो क्लास नोट भी अच्छे से प्रिपेयर करता है, नोबडी कैन फेल हिम और हर। ओके, तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग आई हैव क्लियर्ड इन दिस वीडियो। ओके, और आप इस तरीके से फोकस कीजिएगा अपने एग्जाम के लिए।
और वीडियो अच्छा लगे तो ऑब्वियसली भाई लाइक शेयर और कमेंट तो कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, क्योंकि मैं आईपी के लिए भी ऐसा वीडियो क्रिएट करता हूँ, तो वहां पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो होता है। ओके, तो अपनी इन्हीं सभी बातों के बाद, और हाँ, कोई भी बच्चा ये मान के नहीं चलेगा कि भाई ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ ना, ये डमी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। मतलब कैसे क्वेश्चंस है, डमी जिसको बोला जाता है। तो डिक्टो क्वेश्चन कोई पेपर में नहीं मिलेगा, ये क्लियरली आप समझ लीजिएगा। हाँ, पैटर्न पर आप फॉलो कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस पर आप फोकस कीजिएगा, तो यू विल बी मोर हैप्पी इन योर एग्जाम। ओके, दिस इज माय प्रिडिक्शन, क्लियरली आपको बता, ये मेरा प्रिडिक्शन है। तो मेरा प्रिडिक्शन इस टाइप से है, इस टाइप से हो सकता है कि आपका बेनिफिट हो सकता है इस वाले इसको पढ़ने से। तो वीडियो को जो कुछ भी मैंने इसमें बोला है बहुत ध्यान से सुनना है, और कॉपी और पेपर लेके, पेपर और पेन लेके बैठने, नोट कर लेना कि मैं कहाँ कहाँ पर बोल रहा हूँ, कि यहाँ पर मतलब यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन दिस टॉपिक्स। जिन टॉपिक्स को मैंने कहा है कि यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन दैट, उनको नहीं छोड़ के आना है आपको। राइट, तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बी हैप्पी, स्माइल ऑलवेज, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर।